Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning to all dear students. How are you dear students? With hope so that you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala and your study is going excellent. You all are enjoying online studies and taking the benefits from these online classes, which are actually the beneficial for your academic growth. Dear students, I really cared about the students' learning and their achievement and the success. So with hope so that you all will be successful in your life exams inshallah. So now students, we are starting our today's lecture. In our today's class we are going to learn about the chapter number 5, which is the variety of life, and this chapter variety of life is the part of the biodiversity, and our today's lecture topic is the viral diseases. Okay girls, as you know students that viruses are non-cellular obligate parasite that always have a protein coat and the nucleic acid. The protein coat that encloses the viral genome is called a capsid. It may be the different in shape. Capsid is made up of protein subunits called the capsomers. These number of the capsomers is the characteristics of the particular viruses. Okay girls? These viruses are non-cellular parasites which are able to cause the diseases in the humans, in the plants and in the animals. Viruses are either the virulent, destroying the cell in which they occur, or temperate, right, becoming integrated into their host genome and remaining stable there for long period of the time. So the viruses are able to cause the many of the diseases. A viral infection is very harmful inside the body. Viruses cannot reproduce without the assistance of the host. So they must have to need the host cell. Right students? Viruses outside the living host कैसे होते हैं? They are non-living. Whereas they entered in the host cell, they entered in any living organism, they are able to cause the disease because they act as the parasites. Okay girls? So they can replicate, they can take the nutrition and they can reproduce inside the living host. Where they are living, they are able to causing the diseases. राइट स्टूडेंट्स, ये जिस लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं वहां से अपने लिए फूड मटेरियल लेते हैं, अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो कि डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होता है, विद द कैप्सिड होता है. और कैप्सिड किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है. और प्रोटीन के जिन स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं? उनको हम कैप्सोमर्स कहते हैं. अब ये जो डीएनए है इसको रेप्लिकेट होना है, इसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना है और नंबर ऑफ द वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ द सेल्स में इंक्रीज करना. वायरस बेसिकली तो नॉन सेलुलर होते हैं, लेकिन इनका जो कैप्सिड है उसको ये इंक्रीज करते हैं. कैसे इंक्रीज करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन. राइट स्टूडेंट्स? तो ये वायरसेस जहां पर रहते हैं वहां पर रेप्लिकेशन के प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं? अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में एडिशन करते हैं, अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करते हैं और वहां पर डिजीजेस को कॉज करते हैं. ये कितनी तरह की डिजीजेस करते हैं? ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं. ये एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि इनके लिए एज अ लिविंग होस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, उस पर डिजीज कॉज कर देते हैं. राइट स्टूडेंट? सो हियर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एनिमल वायरल डिजीजेस, plant viral diseases. Okay girls? Now here you can see the list of the animal viral diseases. There are the many types of the animal viral diseases, but here we can discuss only these diseases in which the poliomyelitis, which is also called the polio disease, right, which is actually caused by the virus. Colds, right, encephalitis, dengue fever, yellow fever, chikungunya, influenza, rabies, measles, mumps, AIDS, hepatitis. These viruses also cause the diseases in the plants. Right students? So which type of the diseases they are caused in the plant? They are causing the mosaic diseases. मोज़ेक पैटर्न लीव्स के ऊपर शो करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रॉप होती है, जो प्लांट्स होते हैं वो एडिबल नहीं रहते. राइट? सो दे आर कॉजिंग द टोबैको मोज़ेक डिजीज, which is actually caused by the TMV, tobacco mosaic viruses. Here you can see the different viruses, HIV, hepatitis,
Ebola virus, adenovirus, influenza virus, rabies virus, bacteriophage virus, right? Here are the different types of the viruses which are able to cause the diseases in the living organism. Okay girls? So now what is the viral infection? वायरल इन्फेक्शन क्या होता है? वायरल इन्फेक्शन एक वो इन्फेक्शन होता है जो कि वायरसेस की वजह से होता है. वायरसेस ह्यूमन बीइंग्स में बॉडी के हर पार्ट में डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, बिकॉज वायरल इन्फेक्शन इज ए proliferation inside the body. Viruses cannot reproduce without the assistance of the hosts. राइट ये होस्ट के बगैर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं रखते. वायरसेस इन्फेक्ट अ होस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द सेल्स एंड हाईजैकिंग द सेल्स इंटरनल मशीनरी टू मेक मोर वायरसेस पार्टिकल्स. राइट स्टूडेंट्स, when they attack on the host cells, जब वायरस किसी भी होस्ट सेल के ऊपर अटैक करते हैं, so what will happen? They just inject their DNA or the RNA, their genetic material. When the genetic material is transferred from the virus to the living host, so what will happen? Viruses replicate and reproduce its genetic material. राइट तो क्या होता है कि वायरस के न्यू पार्टिकल्स फॉर्म्ड हो जाते हैं विद द कैप्सिड एंड द प्रोटीन कोड एंड विद द जेनेटिक मटेरियल. राइट स्टूडेंट्स, विद एन एक्टिव वायरल इन्फेक्शन अ वायरस मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड बर्स्ट द होस्ट सेल. सो व्हाट विल हैपन? होता क्या है कि जो होस्ट सेल होती है उसकी किलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यू पार्टिकल्स फॉर्म्ड होते हैं दे ऑल आर वायरल पार्टिकल्स, एंड बाय द बर्स्टिंग ऑफ द होस्ट सेल दीज ऑल वायरस पार्टिकल्स आर फ्री. राइट तो इस तरीके से वायरल इन्फेक्शन फैल जाता है. सिम्टम्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस नॉर्मली इलनेस होती है जिसके रिजल्ट में डैमेज होता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शंस होती हैं और इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है. नाउ गर्ल्स, हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस. फॉर एग्जांपल द encephalitis, कॉमन कोल्ड्स, फ्रिंगाइटिस, right, cardiovascular diseases, hepatitis, skin infections, eye infection, parotitis, pneumonia, myelitis, pancreatitis, राइट और डिफरेंट तरह की डिजीज होती हैं जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है. वायरसेस उन डिजीज को कॉज करते हैं इन दी लिविंग बॉडी बिकॉज वायरसेस आर द पैरासाइट एंड दे हैव टू नीड द लिविंग होस्ट. ओके गर्ल्स, नाउ गर्ल्स वी हैव टू स्टडी द पोलियो. राइट, polio is the viral diseases. Polio is also called the poliomyelitis. Right students, poliomyelitis. Here are the three different words. Polio means the disease, myel means the disease of the spinal cord or the brain, right, and it is means the inflammation, swelling और जिसको हम सूजन भी कहते हैं. ठीक है जी, तो what is poliomyelitis? Poliomyelitis वो वायरल इन्फेक्शन है जो कि पोलियो वायरस की वजह से होता है और ये पोलियो वायरस अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है. ये वायरस जाकर एक्ट करता है किसके ऊपर? बैकबोन के ऊपर. स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड लिंक्ड होता है ब्रेन के साथ, तो ये ब्रेन को इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है जिसमें ब्रेन के ऊपर हो जाती है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेटेड ब्रेन के ऊपर स्पॉटिंग हो जाती है और ब्लड कोगुलेट कर जाता है और डिफरेंट फंक्शन जो ब्रेन परफॉर्म कर रहा होता है वो तमाम के तमाम फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं. तो एक तरह से देखा जाए तो ये कौन सी डिजीज है? ये नर्वस ब्रेकडाउन की डिजीज है. पोलियो क्या करता है कि नर्वस ब्रेकडाउन कर देता है, नर्वस सिस्टम को इनएक्टिव कर देता है और जब नर्वस सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है तो बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट पोलियो इज ऑल्सो नोन एज द पोलियोमाइलिटिस. इट इज हाईली कंटेजियस डिजीज caused by the unenveloped plus strained RNA virus called the poliovirus. Now here is a difference between the unenveloped and the enveloped. अनएनवेलप्ड का मतलब क्या होता है कि हमें पता है कि वायरस के पास कैप्सिड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, कैप्सोमर से मिलकर बना होता है और अंदर उसके होता है जेनेटिक मटेरियल. अनएनवेलप्ड में क्या होता है कि कैप्सिड नहीं होता, डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल होता है. और कौन सी तरह का जेनेटिक मटेरियल होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल. ये जेनेटिक मटेरियल आरएनए कैसा है? ये प्लस है माइनस है? यस, ये प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है. ठीक है, पोलियो वायरस कौन सा है? ये अनएनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड आरएनए वायरस. अब प्लस स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है कि एक तो उसके ऊपर
कैप्सिड नहीं है। सेकेंडली ये क्या है, ये सिर्फ आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल, और ये फौरन से जाकर अटैक करता है और अपनी रेप्लिकेशन यानी अपने रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से वायरस इन्फेक्शन जल्दी से फैल जाता है और ब्रेन को डैमेज कॉज कर देता है। राइट स्टूडेंट्स, पोलियो वायरस का फंक्शन क्या होता है, दैट अटैक्स द नर्वस सिस्टम। अच्छा, बच्चों में ये 5 साल की उम्र तक के बच्चों को अक्सर हो जाता है। अच्छा, पूरी दुनिया में जो WHO है उसने ओवरऑल द वर्ल्ड तो पोलियो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन 3 कंट्रीज उनमें अभी भी पोलियो है, जिसमें से वन ऑफ दी पाकिस्तान, एक उसमें से पाकिस्तान भी है। हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह ये भी जल्द पाकिस्तान से भी खत्म हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को पोलियो हो जाए तो? सिम्टम्स आर जस्ट लाइक द फ्लू की तरह के होते हैं। फ्लू से स्टार्ट होते हैं, देन वो फीवर में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन थ्रोट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, फैटीग होता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है, यानी जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स वायरल इन्फेक्शन की वजह से मल्टीपल हो जाते हैं। सो हमें अगर अपने बच्चों को बचाना है तो क्या करना है, पोलियो के 2 कतरे जरूर पिलाने। ओके गर्ल्स, तो द सेकेंड डिजीज इज द कोल्ड. Cold is caused by the rhinovirus. Rhinovirus is the virus that most often causes the common cold, but there are the more than 200 different viruses that can cause the colds, right? जो कोल्ड होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है। अब राइनो वायरस बेसिकली अ ग्रुप ऑफ द वायरसेस, हियर आर द मोर देन 200 डिफरेंट वायरसेस। ये वो राइनो वायरस एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 200 के करीब वायरसेस शामिल हैं, और कभी कौन सा वायरस अटैक कर लेता है तो कोल्ड हो जाता है, कभी कौन सा अटैक कर लेता है तो कोल्ड हो जाता है। यानी यहाँ पर कोल्ड होने के 200 रीजंस हैं, 200 कॉजेज हैं, 200 वायरसेस हैं जो कि कोल्ड कॉज करते हैं, और इन सबको दे ऑल आर ग्रुप्ड इन दी राइनो वायरस। राइट स्टूडेंट्स, सो ये जो कोल्ड होती है, कोल्ड बेसिकली वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की वजह से होता है। राइट स्टूडेंट्स, अबाउट 1/3 of the cold are caused by the rhinoviruses. Rhinoviruses are the unenveloped plus strand RNA viruses. There are the dozen of the different strands of the cold causing the rhinoviruses alone. Each of them the different properties and non-conferring cross immunity to the others. सो व्हाट इज द कोल्ड? कोल्ड में होता क्या है कि तकरीबन 200 से ज्यादा राइनो वायरसेस होते हैं जो कि कोल्ड कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं। ये अपर मोस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज होती है जिसमें हमें हेडेक होता है और हमें बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, और हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी ब्रीथिंग का प्रोसेस, सांस लेने में तकलीफ होती है। कोल्ड सिम्टम्स कम ऑन द ग्रेजुअली एंड कैन इंक्लूडेड ब्लॉक्ड और द रनी नोज, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सोर थ्रॉट हो जाती है, गले में दर्द होता है और हेडेक होता है, मसल एच होता है, कफ होती है, स्नीजिंग होती है, रेज टेम्परेचर हो जाता है, प्रेशर इन द एयर एंड द फेस, बिल्कुल रेडिश सा फेस हो जाता है और प्रेशराइज हुआ नजर आ रहा होता है, आंखें रेड हो जाती हैं, स्नीजिंग बहुत ज्यादा होती है, जुकाम की जो कंडीशन होती है जिसमें नाक बंद होती है, छींकें आती हैं, खांसी हो जाती है। दीज ऑल आर दी सिम्टम्स ऑफ द कोल्ड। राइट स्टूडेंट्स, नाउ द इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज एन इलनेस that affects about 5% to the 20% of the population in the world every year. More than the 2 lakh people per year are hospitalized annually due to the complication of the flu. Flu symptoms are more severe than the cold symptoms and often include body ache and severe fatigue. There are the 4 types of the influenza viruses. Influenza virus A, B, C and D. Human influenza viruses are normally A and B viruses, which are causing the seasonal epidemic of the disease almost every winter. Right students, flu viruses बेसिकली माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरसेस होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं बोल स्टार्टेड विद स्पाइक्स। एक बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बहुत सारे स्पाइक्स बने हुए होते हैं। हियर यू कैन सी इन द पिक्चर दैट बोल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बहुत सारे स्पाइक्स निकले हुए हैं। ये कौन सा वायरस है? ये इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाते हैं। राइट, ये इन्फ्लुएंजा वायरस कैसे बनता है? क्योंकि हमें पता है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस
कौन सा है? माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। इट्स मीन दैट कि ये नॉर्मली रेप्लिकेशन का प्रोसेस तो नहीं करता, बल्कि क्या करता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फ्लू वायरसेस अपीयर्स टू प्ले द क्रिटिकल रोल इन कॉजिंग द वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंजा फ्लू एपिडेमिक। राइट, क्या करता है? ये करता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो रिकॉम्बिनेंट होता है। एक वायरस का जेनेटिक मटेरियल जो कि माइनस स्ट्रैंड आरएनए होता है वो दूसरे वायरस के साथ रिकॉम्बिनेंट कर जाता है और मिलकर और ज्यादा ताकतवर हो जाता है और क्या कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा फ्लू कॉज करता है। राइट स्टूडेंट्स, इन फ्लू और कोल्ड में क्या डिफरेंस है? फ्लू और कोल्ड में यह डिफरेंस है कि फ्लू बहुत तेजी से होता है, हाई टेम्परेचर होता है, जबकि कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड ग्रेजुअली होता है, और जब ये ग्रेजुअली होता है और इसमें बॉडी पेन होता है, हेडेक होता है और रनी नोज होती है, ठीक है, और ब्लॉक नोज भी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है। जबकि इसमें क्या होता है? चिल्स होते हैं, स्वीटिंग होती है। राइट, टेम्परेचर कितना होता है? 100 से अबव होता है फीवर, और मसल्स पेन होता है, चिलिंग स्वेटिंग होती है, हेडेक होता है, ड्राई परसिस्टेंस कफ होती है, फैटिक एंड वीकनेस होती है, नेजल कंजेशन हो जाती है और सोर थ्रोट होती है। राइट, ये तमाम इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, कोल्ड एंड फ्लू में क्या डिफरेंस होता है? इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू को हम कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है? कोल्ड बेसिकली इसके जो सिम्टम्स होते हैं दे आर वेरी माइल्ड, जबकि जो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं दे आर वेरी सीवियर। जो कोल्ड होता है इसमें माइल्ड फैटीग होती है, जबकि इन्फ्लुएंजा में मसल्स बॉडी एक होता है थ्रू आउट द बॉडी और बहुत ज्यादा फैटीग फील होता है। राइट स्टूडेंट्स, कोल्ड के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो ग्रेजुअली होते हैं, ठीक है, और जबकि इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स कैसे होते हैं? सडन से हो जाते हैं। इन दोनों में जो कॉमन चीज है वो कॉज बाय द वायरस होता है। स्टफी नोज होती है, कफिंग होती है, सोर थ्रोट होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, रनी नोज होती है और कंजेशन इन द नोज हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, ब्लॉक्ड नोज होती है, सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही होती है, कभी मुंह से सांस ले जाता है, कभी नाक से। तो ये इनके दरमियान सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंसेस क्या है कि इन्फ्लुएंजा बहुत सडन हो जाता है और जबकि कोल्ड कैसा होता है? ये बिल्कुल ग्रेजुअल होता है। Right, students? Now the next disease is the encephalitis. Encephalitis is the inflammation of the brain which caused by the arthropods bone viruses called the arbovirus. राइट स्टूडेंट्स, इंसेफेलाइटिस क्या होती है? ये ब्रेन की स्वेलिंग होती है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी दिमाग पर सूजन आ जाना। क्या कहलाता है? इंसेफेलाइटिस कहलाता है। ये आर्थ्रोपोड्स की वजह से यानी इंसेक्ट्स की वजह से होती है। इंसेक्ट्स बोन वायरसेस होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के परों पर या उनकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर रहते हैं और जब वो बॉडी के ऊपर लिविंग होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या करते हैं? एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं और वायरस को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं। द नेम ऑफ द वायरस विच इज एबल टू कॉज द डिजीज encephalitis is called the arbovirus. Right students, arboviruses cause the yellow fever, dengue fevers, chikungunya, different तरह के जो fevers होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? Because of the encephalitis. encephalitis में क्या होता है? ब्रेन पर swelling आ जाती है। इसका रीजन क्या है? What is the basic cause? Cause क्या है? वायरस है। वायरस कौन सा है? आर्बोवायरस। इसका कॉज है enveloped plus strand virus. इट्स मीन ये प्लस स्ट्रैंड वायरस होता है जो कि एनवेलप यानी कैप्सिड के अंदर ब्लॉक्ड हुआ होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो एनवेलप्ड प्लस स्ट्रैंड वायरस कॉज द येलो फीवर। ल्यूकेमिया इज ऑल्सो कॉज बाय द वायरस। ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर WBCs जो होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना और WBCs का जो काउंट होता है वो इंक्रीज हो जाना। अब चूंकि एबनॉर्मल सेल्स हैं तो क्या करते हैं? ये RBCs को कम कर देते हैं और बॉडी से RBCs का कम हो जाना यानी डिजीज कॉज करना। राइट स्टूडेंट्स, सो ल्यूकेमिया का एक रीजन क्या है? वायरस इन्फेक्शन भी है। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये जो येलो फीवर है, येलो फीवर में आईज और फेस और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स येलो नजर आते हैं। ये पार्ट्स येलो क्यों नजर आते हैं?
येलो फीवर में जो बॉडी होती है वो येलो क्यों नजर आ रही होती है, उसका क्या रीजन है? वो उसका रीजन ये है कि जब बॉडी के अंदर आरबीसीज यानी रेड ब्लड कार्पसल्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे एक अदद प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट का नाम होता है ब्लू रिबन। ब्लू रिबन का एक्चुअली कलर कैसा होता है? उसका कलर येलो होता है। जब बॉडी के अंदर येलो कलर के प्रोडक्ट की, केमिकल कंपाउंड की ज्यादती हो जाती है, इंटेंसिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी येलो इन कलर हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड दैट येलो फीवर में बॉडी टर्न इनटू येलो इन कलर, राइट, डीकलरेशन हो जाती है। और क्या होता है कि स्किन का कलर डीकलरेट होकर कैसा कन्वर्ट हो जाता है? येलो हो जाता है। आईज, नेल्स और बॉडी येलो येलो दिखाई दे रही होती है। अच्छा, अब येलो फीवर में हरगिज मतलब ये नहीं कि येलो फीवर में लाजमी सी बात है कि हेपेटाइटिस हो जाएगा या लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि जब येलो फीवर होता है तो जॉइंडिस हो जाएगा और जिसको जॉइंडिस होगा उसको लाजमी हेपेटाइटिस हो जाएगा। राइट, सो येलो फीवर का कॉजिंग एजेंट कौन है? येलो फीवर का कॉजिंग एजेंट है एनवेलप्ड प्लास्टिड वायरस, दैट इज कॉल्ड द आर्बो वायरस। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा, येलो फीवर के बाद डेंगी भी कि डेंगी भी एक कॉमन बीमारी है और कुछ टाइम पहले ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गई थी पाकिस्तान में। डेंगी का कॉजिंग एजेंट है एडिस इजिप्टाई। आर्थ्रोपोड बोन वायरसेस हैं, तो ये आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट्स को एज अ वेक्टर यानी एज अ व्हीकल, गाड़ी के तौर पे यूज करते हैं। उनके ऊपर ये वायरसेस अटैच हो जाते हैं और जैसे ही ये इंसेक्ट्स बॉडी के साथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करते हैं तो क्या करते हैं कि ये अपना वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके जो इंसेफेलिटीज में हमारे पास येलो फीवर है, डेंगी है या फिर चिकनगुनिया वगैरह है, इनके कॉमन सिम्टम्स होते हैं। क्या होता है? हेडेक होता है, फीवर होता है, एक होता है, जो बॉडी मसल्स के अंदर, ज्वाइंट्स के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता है, फैटीग होती है, वीकनेसेस हो जाती है, कंफ्यूजन होती है, सीजर्स होते हैं, लॉस ऑफ द सेंसेशन होती है, पैरालिसिस इन द सर्टन एरियाज और द फेस और द बॉडी। राइट, मसल्स वीकनेस हो जाती है, प्रॉब्लम विद इन द स्पीच और द हियरिंग, सुनने में और बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज द रेबीज। रेबीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द लुईस पास्चर इन द 19th centuries. Rabies is caused by the rod-shaped rhabdovirus minus strand RNA virus. Right, students? Rabies is the most often spread by the small mammals such as the dog, raccoons, and the foxes, and sometimes from the bats. Right? Bats से भी ये होती है क्योंकि बैट्स का जो स्लाइवा होता है उसके अंदर रेबीज यानी रैबिडो वायरस रहता है। ठीक है जी, दिस वायरस इज स्प्रेड बाय द सलाइवा ऑफ द होस्ट एनिमल आफ्टर द बाइट्स. Rabies controlled by the simple method to vaccinate the pets again the rabies, and human vaccines are also being developed. इसके सिम्टम्स में नॉर्मली होता क्या है कि इसके सिम्टम्स में अर्ली फ्लू होता है, लाइक सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो रेबीज होती क्या है? रेबीज वो बीमारी होती है जो कि डॉग बाइटिंग से, फॉक्स बाइटिंग से, रेकोन्स बाइटिंग से या फिर बैट बाइटिंग से होती है, क्योंकि रेबीज का जो वायरस है दैट इज कॉल्ड द रैबिडो वायरस माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। ये इनके सलाइवा में रहता है, ये इन एनिमल्स को एज अ वेक्टर यूज करता है, और जब ये एनिमल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाइट करते हैं तो उनके अंदर ये अपने जरासीम को ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि हर एनिमल लाइक हर डॉग, फॉक्स, रैकून्स या फिर हर बैट के सलाइवा में ये वायरस मौजूद नहीं होता, इसलिए हर डॉग बाइटिंग से रेबीज नहीं हो जाता। सो इट्स मीन दैट कि हर डॉग बाइटिंग से रेबीज नहीं हो जाती है, लेकिन जिनको रेबीज होती है बहुत ही सीवियर होती है। बहुत कम लोग पेशेंट रेबीज से बचते हैं, जिनको रेबीज हो जाती है बहुत सीवियर टाइप की होती है, क्योंकि इसमें अक्सर हाइड्रोफोबिया हो जाता है, कंफ्यूजन होती है, एग्रेशन हो जाता है, बंदे को बहुत गुस्सा आता है, वो कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता वो कैसे एक्शन शो करे, उसका जो नर्वस सिस्टम होता है टोटली जो ना वो ब्रेक हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया ऐसा होता है कि पानी नहीं पी सकता। पानी ना पीने की वजह क्या होती है? क्योंकि इसकी जो थ्रोएट होती है, गला जो होता है वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है। एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड होता है जिसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके ब्रेकडाउन होने का बहुत खतरा होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डेवलप्ड होते हैं इंक्लूडिंग द कंफ्यूजन एंड द एग्रेशन।
राइट स्टूडेंट्स, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ द रेबीज। रेबीज को कंट्रोल करने के लिए पैट्स को भी, एनिमल्स को भी और जो डॉग्स होते हैं उनको भी वैक्सीनेट करवाया जाता है। अगर किसी को रेबीज हो जाए तो उसको भी वैक्सीन दी जाती है ताकि वो ड्यूरिंग टाइम ड्यूरेशन उसको कंट्रोल कर लिया जाए। ओके गर्ल्स, नेक्स्ट डिजीज है मीजल्स। मीजल्स जिसको हम उर्दू में खसरा कहते हैं। मीजल्स इज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ द वायरस कॉल्ड द पैरामिक्सो वायरस। राइट, ये वो ग्रुप है वायरसेस का जो कि माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। नाउ स्टूडेंट, दिस पैरामिक्सो वायरस कॉज द मीजल्स इन द चिल्ड्रन because measles is a childhood infection caused by the virus. It is contagious virus transmitted in the tiny droplets when an infected person cough, breathe or sneeze. Measles signs and symptoms appear around the 10 to 14 days after exposure to the virus. Measles can now almost always be prevented with the vaccine. Signs and symptoms of the measles typically included fever, dry cough, runny nose, sore throat, inflamed eyes, tiny white spots with the bluish white centers on a red background found inside the mouth of the inner lining of the cheek, also called the complex spots. Right students, मुंह के अंदर जैसे व्हाइट से स्पॉट्स बन जाते हैं और ब्लूइश से होते हैं, राइट। और स्किन रैश मेड अप ऑफ अ लार्ज फ्लैट ब्लॉचेस दैट ऑफन फ्लो इनटू दी वन अनदर। आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे से ये दाने नुमा हो जाते हैं जिनको हम खसरा कहते हैं, मीजल्स कहलाते हैं। इसका कॉजिंग एजेंट है वो कौन सा है, वो पैरामिक्सो वायरस है जो कि माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है? ये 10 to 14 डेज में कंट्रोल हो जाता है और इसकी वैक्सीन होती है, वैक्सीन दी जाती है, फिर ये कंट्रोल हो जाता है। मम्स को हम कनफड़ कहते हैं। मम्स इज कॉज्ड बाय अ टाइप ऑफ द वायरस कॉल्ड द पैरामिक्सो वायरस। इट इज अ ग्रुप ऑफ द माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस। Mumps is a viral infection that primarily affect the saliva producing salivary glands that are located near the ear. राइट स्टूडेंट्स, कान के पास salivary glands मौजूद होते हैं। ये salivary glands क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ द पैरामिक्सो वायरस जो कि माइनस स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है, अगर ये salivary gland के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है तो जिसकी वजह से salivary glands क्या हो जाते हैं, ये इन्फ्लेमेटेड हो जाते हैं, इन पे सूजन आ जाती है और ये इन्फेक्शन शो करते हैं और जिसकी वजह से गले पर, फेस पर, कान के पीछे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कैसा होता है, स्वेलिंग हो जाती है। मम्स कैन कॉज स्वेलिंग इन वन और बोथ these glands. The sign of this mumps is swollen salivary glands that cause the cheeks of puff out. Other signs and symptoms may include pain in the swollen salivary glands. जो salivary glands होते हैं दोनों साइड्स पर हमारे चीक्स के अंदर होते हैं ये, और जॉ लाइन के साथ अटैच हुए होते हैं, इनके अंदर दर्द होता है, ये स्वेल हो जाते हैं और जब भी हम कोई भी चीज चबाते हैं या खाते हैं या पीते हैं तो ये हमें पेन महसूस होता है, पेन हमें फील होता है। फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल एच होता है, वीकनेस हो जाती है, फैटिक फील करते हैं और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा मम्स का भी यही है कि इसका भी टाइम ड्यूरेशन 5 to 7 डेज में ये वायरस किल हो जाता है अगर वैक्सीन दी जाए तो, और उसके बाद ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इस तरीके से मम्स की डिजीज फिर बच्चों में खत्म हो जाती है। ये बेसिकली नॉर्मली बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी हो जाती है मम्स, ठीक है। और मम्स जो कॉज होती है वो किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ द पैरामिक्सो वायरस। नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज दिस चिकन पॉक्स स्किन शिंगल्स, राइट। अच्छा, चिकन पॉक्स एज यू नो दैट दीज आर दी स्मॉल स्पॉट्स, रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी पर। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है ग्रुप ऑफ द वायरस। द नेम ऑफ दैट ग्रुप इज द herpes वायरस, right student? Chickenpox is caused by the group of the herpes viruses called the Versicella zoster virus, which also cause the shingles. जब ये अलग अलग छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं तो ये कहलाते हैं चिकन पॉक्सेस, लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत सारे ग्रुप की फॉर्म में हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं शिंगल्स बनाते हैं। और वो शिंगल्स का रीजन कौन है? उसका रीजन है वायरस। उसका कॉजिंग एजेंट कौन है? उसका कॉजिंग एजेंट है वायरस। ग्रुप क्या कहलाता है? हर्पेस वायरस
कहलाता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब चिकन पॉक्स में होता क्या है, इसमें इची ब्लास्टर्स होते हैं जो कि चिकन पॉक्स इन्फेक्शन को शो कर रहे होते हैं और 10 to 21 डेज लगते हैं इसको रिमूव होने में। द इची ब्लास्टर रैश caused by the chickenpox infection appear 10 to 21 days after the exposure to the virus and usually last about the 5 to 10 days. Other signs and symptoms which may appear 1 or 2 days before the rash includes. क्या क्या symptoms होते हैं जब इनको अच्छे से पूरे जो चिकन पॉक्सेस होते हैं वो कंप्लीट बॉडी पर एक्सपोज नहीं होते, क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं? फीवर होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, हेडेक होता है, टायर्डनेस होती है, जनरली फीलिंग कैसी होती है? अनवेल होती है। अच्छा, इसके अलावा चिकन पॉक्स अपीयर हो जाते हैं, रैश अपीयर होता है और कैसे होता है कि इनमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, पिंक इन कलर और रेड बम्प्स हो जाते हैं जो कि पेप्यूल्स की तरह होते हैं विच ब्रेक आउट ओवर सेवरल डेज, राइट? काफी दिनों तक वो रहते हैं, एटलीस्ट 7 to 10 और 10 to 20 डेज तक रहते हैं। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं जो कि वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर वायरस के ब्लिस्टर्स के अंदर वायरल फ्लूइड फिल्ड हुआ होता है जो कि ब्लिस्टर की फॉर्म में होता है विच फॉर्म इन अबाउट 1 day एंड देन ब्रेक एंड लीक्ड, राइट? Crust and escapes which cover the broken blister and take several more days to heal. ये जो ब्लिस्टर होते हैं जब ये फट जाते हैं और इनके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो बाहर आ जाता है लीकेज की वजह से, तो उसके ऊपर क्रस्ट एंड स्केप्स बनना स्टार्ट होते हैं। ब्लैक कलर का, डार्क इन कलर की स्किन आना शुरू हो जाती है जो कि उन ब्रोकन ब्लिस्टर को कवर अप करती है और जिसकी वजह से हीलिंग यानी सेहतयाबी होना स्टार्ट हो जाती है, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज बेसिकली द चिकन पॉक्स। इसकी वैक्सीन होती है और उस वैक्सीन की वजह से चिकन पॉक्स को कंट्रोल किया जा सकता है। Viruses also cause the diseases in the plant. So now we have to discuss the plant diseases. Right students? Plant diseases virus cause करता है, that is called the tobacco mosaic disease. Tobacco mosaic disease is caused by the tobacco mosaic virus, that is called the TMV. Right? Tobacco mosaic virus can infect a wide range of the host and losses about the 20% have been reported in the wide variety of the horticulture and the vegetable crops, roses, beans, tobacco, tomato, potato, cucumbers and the peppers. Right? So इन तमाम प्लांट्स को कौन डिजीज करता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ये इन तमाम प्लांट्स को डिजीज कॉज कर देता है। प्लांट वायरसेस कैन बी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सिम्टम्स, लुक सिमिलर टू मैनी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज एंड वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्लांट व्हेन इन्फेक्शन अकर, राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं उस तरह के सिम्टम्स होते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज के, राइट? तो अक्सर ये होता है कि एज फैक्टर होता है प्लांट का, उसकी वजह से येलोनेस आ जाती है या फिर कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से आ जाती है, तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट स्टूडेंट्स? देयर आर द टू मेजर रूट्स बाय विच अ प्लांट वायरल डिजीज कैन स्प्रेड, आइदर बाय द हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन or the vertical transmission, right? In the first, the plant infected from an external source of the virus through the injured part or the through insects, right students? In the second part or the second type of the transmission, a plant inherits a viral infection from a parent, right students? Right? अच्छा, vertical में क्या होता है कि vertical में वायरल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? फ्रॉम द पेरेंट। जबकि हॉरिजॉन्टल में इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है? ये इन्फेक्शन होता है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से जिसके ऊपर वायरस अटैक हुआ होता है। सिम्टम्स ऑफ द टोबैको मोज़ेक डिजीज आर येलो, व्हाइट और द ग्रीन स्ट्रिप्स, स्ट्रीक्स, स्पॉट्स ऑन द फॉलिएज। लीफ की पत्तियों के ऊपर कैसे येलो, व्हाइट, ग्रीन के स्ट्राइप्स और स्ट्रीक्स बन जाती हैं, ठीक है? रिंकल्ड, कर्ल्ड और दी स्मॉल लीव्स हो जाती हैं। प्लांट अच्छा खासा ग्रो कर रहा होता है, अचानक से उसकी लीव्स रिंकल्ड हो जाती हैं या कर्ल्ड होकर स्मॉल लीव्स ग्रो करना शुरू कर जाती हैं। प्रोनाउंस्ड येलोइंग ओनली ऑफ द वेन्स, वेन्स पर क्या होता है कि येलोनेस आ जाती है। स्टंटेड ग्रोथ एंड रिड्यूस द यील्ड,
छोटी हाइट रह जाती है प्लांट पर और उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो स्टॉप हो जाते हैं या कम से कम यील्ड प्रोड्यूस करती है। स्टंटेड ग्रोथ और जो उसकी प्रोडक्शन होती है वो रिड्यूस होने के साथ साथ इन्फेक्टेड फ्रूट कैसे होते हैं, वो मॉटलेट एंड दी डेवलप्ड रेस वर्टी एरियाज। राइट स्टूडेंट्स, सो टोबैको मोज़ेक डिजीज सिर्फ और सिर्फ टोबैको प्लांट में नहीं होती, बल्कि ये बहुत सारी क्रॉप्स में, वेजिटेबल्स में, हॉर्टिकल्चर में और रोजेस, बीन्स, टोबैको, टमाटोज, पोटैटोज, कुकम्बर, पीपर्स, इन सब में ये डिजीज हो जाती है। राइट स्टूडेंट्स, so this is the tobacco mosaic disease, and through this disease virus was discovered by the Russian scientist, Russian biologist named Ivanovsky, और इवानोस्की ने 1892 में टोबैको मोज़ेक डिजीज की वजह से वायरस को डिस्कवर किया था। राइट स्टूडेंट्स, ओके। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वायरसेस। वायरसेस होते क्या है? सो व्हाट आर द वायरसेस? वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जो कि ए सेलुलर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल टेल फाइबर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ये जो डीएनए है इसको रेप्लिकेट होना है, इसको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना है और नंबर ऑफ द वायरल इन्फेक्शन में इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ द सेल्स में इंक्रीज करना। क्या करते हैं? अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में एडिशन करते हैं, अपने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को इंक्रीज करते हैं और वहां पर डिजीजेस को कॉज करते हैं। ये कितनी तरह की डिजीजेस करते हैं? ये बहुत सारी डिजीजेस कॉज करते हैं। ये एनिमल्स में, प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कि इनके लिए एज अ लिविंग होस्ट परफॉर्म कर रहा होता है, उस पर डिजीज। सो गर्ल्स, दिस इज होल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मस्ट हैव टू आस्क फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच गर्ल्स, हैव अ वंडरफुल डे। दिस इज मिस सबीन जहूर, प्लांट्स पैथोलॉजिस्ट।